Welcome to my YouTube channel, Charismatic English by Abby Sir. I am your English teacher, Abby Sir, and as today I have said that I am going to launch my spoken class. So, due to some problem, I am not able to go to my institute. So that is what I have decided to teach from home itself. So that is what I have started the video. So please make sure that you guys are you know available with me, and whatever I'm telling you, try to do that as soon as possible. So here we go. Here you all have to prepared with your pen and copy. Just jot down whatever I'm going to say, and make sure that you're going to be a very good speaker. That is my promise to all of you. But all you need to understand what exactly I'm talking about, and you have to understand what I teach from the bottom. And if you have any question, do let me know in a comment box. If you have any doubts, please do let me know in the comment box. However, I have made YouTube channel, I have got my Telegram channel, I have got my website, I have got my WhatsApp group. Wherever you feel comfortable, you can drop me an SMS, or you can chat me, you can ping me. I will be there to help you. There shouldn't be any problem. So let's proceed further with the class. आज स्पोकन का पहला क्लास है, और मैं आपको टास्क दिया करूँगा, और वो टास्क आपको फॉलो अप करना है. एंड वेरी सूनर यू आर गोइंग टू स्पीक वेरी गुड. You will be a fluent speaker. That is my promise to all of you. So make sure that what I'm talking about, it is only for your betterment, dear. All right. So here we go. जो सबसे पहले काम आपने करना है वो है कि आपको एक टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करना होगा, और आपको पढ़ना होगा. देखिए ध्यान से, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, और इसको आपको दिन भर में 5 बार पढ़ना है. Having been exposed a number of training programs such as customer service, selling skills and strategic planning, I have come to the conclusion that most of there are great programs with one major challenge. None of them will work unless they have the right foundation, and the right foundation is TQP. What is TQP? Total quality people are people with character, integrity, good values and positive attitude. तो इस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 5 बार. एक बार फिर से मैं सुना देता हूँ. Having been exposed a number of training programs such as customer service, selling skills and strategic planning, I have come to the conclusion that most of there are great programs with one major challenge. None of them will work unless they have the right foundation, and the right foundation is TQP. What is TQP? Total quality people are people with character, integrity, good values and positive attitude. आपको कुछ नहीं, बिना सोचे समझे इसको 5 बार पढ़ना है. अपने टंग को साफ करना है, अपने माउथ को साफ करना है. 5 बार इसको पढ़ना है. ध्यान से देखिएगा. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my bitter bitter. So she bought a bit of butter and she put the butter, so the butter wasn't bitter. अभी 2 आपको ये करना है, 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है. तो टास्क नंबर 1, आप लोग इसको ध्यान से देखें. इसको करना है, किसी भी हालत में करना है. अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले तो आपको करना होगा. बात बाकी आगे बढ़ते हैं. तो इन दोनों को समझ में आ गया. अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो पहला लेसन आपका ये है कि पहला टास्क ये जो है, आपको 45 डेज़ में आपको टास्क दिया करूँगा, और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे. हालांकि ऑनलाइन ये बहुत बेटर नहीं हो पाएगा. ऑफलाइन चूँकि मैं सामने बुलवाना, स्टेज लाइट दे के प्रैक्टिस कराना, ये सब करवाना था. बट अभी जब तक कोरोना का प्रॉब्लम है तब तक तो हम लोग ऑनलाइन ही चलेंगे, और ऑफलाइन जब क्लास खुलेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस कराएंगे. आपको बताया था ड्रेस कोड वगैरह भी है, बट नेवर माइंड, अभी इस तरह से हम लोग को चलने दीजिए. आइए, अब यहाँ पे आपको शुरू होता है कुछ क्वेश्चन. जैसे ये वीडियो उनके लिए कारगर है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जिनका टेंस जो है, ध्यान सीखिएगा, जिनका टेंस कंप्लीट हो गया. जो बच्चे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर टेंस का वीडियोस देखें, टेंस पढ़ें, तब जाकर उनको समझ में आएगा. तो यहाँ पे जनरली हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे. इस क्वेश्चन को आपको बोलना है. ठीक है. मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी आपको बोलना है, और इस प्रकार से आप बोलने का प्रैक्टिस करेंगे. और जाहिर सी बात है कि इसको आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे. जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो. मान लीजिए कि एक लड़का है, इसका नाम राजू है.
और यह स्टूडेंट है, तो क्या करेगा भैया? तो पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये आंसर देगा व्हाट डू यू डू। किसी ने आपसे पूछा, मान लीजिए इसने, प्रकाश ने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो उसको बोलना है आई एम अ स्टूडेंट सो आई स्टडी। अब इसमें आप व्हाट डू यू डू में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं वेल आई एम अ हाउस वाइफ सो आई लुक आफ्टर माई फैमिली। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। जैसे मुझसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू डू, तो हम बोलेंगे वेल आई एम अ इंग्लिश टीचर सो आई टीच इंग्लिश एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 11 years। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड ऑन। आपको थिंक करना है, और जितना ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको बोलेंगे, जितना ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको सोचेंगे, जितना एक क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करेंगे, थिंकिंग पावर बढ़ाएंगे, आपके अंदर उतनी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक आइडिया है कि आप लोगों को टंग ट्विस्टर की अपनी अपनी वीडियोस 10-20 सेकंड की वीडियोस बनाकर और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड करना है कि आप बोलते हुए हैं। जैसे आपको बोलना है बेटी बटर बॉटसम बटर बर्सी सेट द बटर्स बीटर इफ आई पुट इन माई बटर इट विल मेक माई बटर बीटर सोसी बटर बीटर बटर एंड सी पुट द बटर सो द बटर वजन बीटर। तो इस तरह का जैसे है यू नो हैविंग बीन एक्सपोज, तो ये वीडियोज़ आपको बनाकर डालना है। नहीं डालिएगा तो आगे क्लास नहीं दूंगा। जो कहना है वो, जो कर रहा हूँ वो करना पड़ेगा। वट एवर आई एम सेइंग यू हैव टू डू इट। तो इसका वीडियो बना के डालेंगे। अब तुम क्या करते हो, तो तुम, आपको अब इसका प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बात करना है, यू नो हाउ टू हैंडल दैट स्टफ। तो व्हाट डू यू डू, तो आपको बोलना है वेल आई एम अ स्टूडेंट सो आई स्टडी एंड यू नो आई स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश व्हाटसोएवर। आई हैव अ साइंस बैकग्राउंड, या माई स्ट्रीम इज साइंस सो आई स्टडी साइंस। In science I study physics chemistry biology maths English Hindi whatever। see the thing is that you have to speak। जितना ज़्यादा देखो, स्किप नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यस नो के चक्कर में रहते हैं। नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है कि क्वेश्चन पे, कि हाँ भाई हमको बात करना है। अब आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट्स योर जॉब। आ जाइए देखते हैं व्हाट्स योर जॉब। आपका जॉब यानी आपका कार्य क्या है, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी आपके ऊपर क्या दायित्व हैं, आप क्या क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अब जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होती नहीं है, एक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टू स्टडी, तो जो भी होगा टू से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार साफ कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 + V1। जैसे माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टू स्टडी, टू लुक आफ्टर माई फैमिली, टू हेल्प माई ब्रदर एंड सिस्टर, टू हेल्प माई मदर, टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, टू हेल्प माई कंट्री, टू सर्व माई कंट्री। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपको करना है। फिर व्हाट डू यू डू एवरी डे, तो मॉर्निंग से लेके बेड टाइम तक आप क्या क्या करते हैं उसको आपको बोलना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। तो जैसे आपको बोलना है कहाँ गया, व्हाट डू यू डू एवरी डे, तो आई गेट अप एट o'clock, आफ्टर दैट, तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, और इसके बाद आपको आफ्टर दैट लगाते रहना है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गो टू लू माने होता है बाथरूम जाना, आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, आफ्टर दैट आई डू वर्शिप, आफ्टर दैट आई eat my breakfast, after that I go to attend my tuition, after that I come back to my house, after that I watch mobile, after that I play PUBG, Free Fire, I play mobile games on my mobile, or I
use WhatsApp, Facebook. After that again I go to attend my tuition. After that I come back in the evening, I play with my friends. Lot of things you can say that. तो what do you do every day, ये हो गया. 4 क्वेश्चन तक आपका टास्क है. ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे देना है. टास्क नंबर 2 हो गया स्पोकन का. ठीक है, आगे आइए. यहाँ तक अभी करना है. अब आगे बढ़ते हैं. आइए, अब यहाँ पे मॉडरेट टेंस हम लोग पढ़ेंगे. मॉडरेट टेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए टेंस है. जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ा होगा, इतना डिटेल में टेंस पढ़ाया है मैंने, इतना डिटेल में कि शायद आपको उतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा. ठीक है, ये लिख के रख लीजिएगा. nobody is there who gonna teach you like that what I have taught you. So make sure that you really wanted to speak English, follow me and follow my instructions what I am saying right now, right away. Okay, so एक्सेंट भी प्रैक्टिस कराऊंगा, सारा चीज़ करवाऊंगा. तो सबसे पहले यहाँ दे, आई राइट मैं लिखता हूँ, आई रोट मैंने लिखा, आई राइट मैं लिखूंगा. तो ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट और ये हो गया आपका फ्यूचर. आई राइट अ लेटर present, I wrote a letter past, I'll write a letter future. Explanation: tense tell about the time of an action event. There are 3 kinds of tenses. टेंस जो है वो हमें बताता है किसी एक्शन का, कार्य का जो समय होता है वो बताता है. जैसे प्रेजेंट का समय होगा तो प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, पास्ट का होगा तो पास्ट टेंस बन जाएगा, और अगर कोई प्लानिंग है फ्यूचर की है तो वो फ्यूचर में बन जाता है. तो जनरली हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट. ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. हमें बस स्पीकिंग करनी है. तो स्पीकिंग के लिए ये सिंपल प्रेजेंट में हमें जैसे बोलना है आई डेली गो टू स्कूल. अब डेली से 10 वाक्य बनाना है. आई डेली गो टू स्कूल, आई डेली गो टू माई कोचिंग, आई डेली प्ले क्रिकेट, आई डेली सिट ऑन द चेयर, आई डेली टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क. इस प्रकार से. और इससे भी आपको बनाना है हैव से 10 वाक्य. आई हैव अ कार. अब आपको देखिए यहाँ पे 2 चीज़ करना है, आई हैव और एक चीज़ और लिखना है आई हैव गॉट, और आगे आपको वो डाल देना है. जैसे आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव अ वॉच, आई हैव गॉट अ वॉच, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव गॉट अ पेंसिल, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव गॉट अ कंप्यूटर, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव गॉट अ लैपटॉप. इस प्रकार से इसको बात करना है. आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी. 10 को इसमें बोलिए. अब एक्सप्लेनेशन देखिए. जनरली इस टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रूटीन वर्क के लिए. जैसे आई डेली गो टू स्कूल, आई डेली ईट समोसा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू लू, आई स्टडी इंग्लिश डेली, आई प्ले चेस डेली. तो जो भी है, तो ध्यान से देखिएगा. एक्सप्लेनेशन बताता है कि इस टेंस में रूटीन वर्क आपका आ गया. अगला आ गया पोजीशन, अधिकार. प्रेजेंट टेंस में अधिकार दिखाना. जैसे आई हैव अ कार, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस अदर वर्ड. ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी याद रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड होता है. तो V1 हो गया हैव और V5 हो गया हैज़. तो ये सिंपल पर, जैसे आई हैव अ कार तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसका निगेटिव बनेगा आई डू नॉट हैव अ कार. डू आई हैव अ कार, डू आई नॉट हैव अ कार, वाई डू आई हैव अ कार, वाई डू आई नॉट हैव अ कार. मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार नहीं है. क्या मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास एक कार नहीं है, क्यों मेरे पास एक कार है, क्यों मेरे पास एक कार नहीं है. तो आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं. जैसे आई हैव अ कार, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ये मत समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्योंकि हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया है और हैव V1 होता है, हैज़ V5 होता है. अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में न आया हो तो हम बात करेंगे आई हैव अ कार. उसके बाद दिया है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी अवस्था दिखाना. आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी. तो ये भी अवस्था दिखा रहा है. और एम जो है ये प्लूरल होता है. याद रखिएगा जिसके अंत में एस लग जाए, किसी भी वर्ब के अंत में अगर एस लग गया तो वो सिंगुलर होता है. जैसे इज सिंगुलर है, जैसे हैज सिंगुलर है, जैसे डज सिंगुलर है, जैसे वॉज सिंगुलर है, जैसे प्लेज सिंगुलर है. तो जिसके अंत में एस लग गया, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, सब सिंगुलर हो जाता है. तो आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी बना सकते हैं. और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
डॉग बार्क्स, बर्ड्स फ्लाई, ऐसे है। अब आ जाइए, अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पैदा करके उसका आंसर देना। तो अभी हम लोग स्पोकन में क्या सीखना है कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन दो प्रकार का होता है बच्चे, एक होता है यस नो और एक होता है डब्ल्यूच। हम बात कर रहे हैं यस नो का, जैसे डज शी सिंग अ सॉन्ग, यस शी डज, नो शी डजंट। जैसे डू यू हैव अ कार, यस आई डू, नो आई डू नॉट हैव अ कार, यस आई डू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार, नो आई डू नॉट हैव अ कार। तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। जैसे डू यू हैव 100 रुपीज़, यस आई डू हैव 100 रुपीज़, आई हैव 100 रुपीज़, नो आई डू नॉट हैव 100 रुपीज़। तो इस प्रकार से यस नो वाला ये काम कराता है। जैसे डू यू राइट अ स्टोरी, यस आई राइट अ स्टोरी, यस आई डू। अगर आप शॉर्ट चाहते हैं तो सीधे बोलिए यस, अगर थोड़ा और मॉडरेट करना चाहते हैं तो यस आई डू, और अगर पूरा ही बोलना चाहते हैं तो बोलिए यस आई राइट अ स्टोरी, नो आई डोंट राइट अ स्टोरी, नो आई डोंट राइट अ स्टोरी। तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। जैसे व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, तो आप बोल सकते हैं सी नीड्स अ स्वेटर, यानी स्वेटर बुनती है। सी स्लीप्स, तो वह सोती है। नो शी डजंट स्लीप, वो नहीं सोती है। व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, तो वो खाना बनाती है। तो सी कुक्स द फूड, नो शी डजंट कुक द फूड। जैसे यू लाइक मैंगोज डोंट यू, तो ये आपको जो है क्वेश्चन टैग में आ गया। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है छोटा सा क्वेश्चन चिपका देना। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डू यू लाइक मैंगोज, येस आई लाइक मैंगोज, नो आई डोंट लाइक मैंगोज। जैसे शी डजंट लाइक कॉफ़ी, डज शी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डज शी लाइक कॉफ़ी, इसको हटा दीजिए अभी 2 मिनट के लिए। यस शी डज, नो शी डजंट। इज़ ही इल, यस, क्या वो बीमार है, यस ही इज़, नो ही इज़ नॉट। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे और इस तरह से आप 10-15 क्वेश्चन प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को समझकर आपको बात करना होगा, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है कुछ भी। तो आइए समझ लीजिए इस चीज़ को कि आपसे कोई पूछता है कि डू यू लव योर मदर, तो येस आई लव माई मदर। अच्छा, आपसे कोई पूछता है डू यू लाइक एबी सर, येस आई डू लाइक एबी सर, नो आई डू नॉट लाइक एबी सर। डज एबी सर टीच वेरी गुड, येस ही टीचेस वेरी गुड, नो ही डजंट टीच वेरी गुड। इस प्रकार से आप अपने से क्या करना है, आपको डू या डज से 10 क्वेश्चन और उसका आंसर पॉजिटिव में और निगेटिव में लिखकर दिखाना है। यानी 3 टास्क आपका हो गया, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। 3 में पहला में वीडियो बनाना है, दूसरा में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तीसरा ये क्वेश्चन करके दिखाना है। और इन सब को मेरे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उस पर आपको मैसेज करना है। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे 8434315135। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा और ये करेंगे। अगर आप टास्क नहीं कंप्लीट करते हो तो मैं आगे वीडियो नहीं दूंगा। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप कोई चीज़ करते हो तो शिद्दत से करो। अगर स्पोकन कर रहे हो, यकीन मानो इतना बेस्ट बना दूंगा कि आप कहोगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी होगी, पूरे तरीके से मेरे साथ उतरना होगा। जो मैं कहता हूँ वो करो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। थोड़ा सा हम तुमसे एक चीज़ और बात करने वाले हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, इसको भी तुम लोग को ध्यान देना है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे इस पे भी तुमको क्या करना है, ये चौथा टास्क होगा। इस पे तुमको 5-5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे राम प्लेस क्रिकेट, राम, जैसे आई प्ले क्रिकेट, माई मदर प्लेस क्रिकेट, माई फादर गोज़ टू पटना, माई अंकल सिंग्स अ सॉन्ग, राजू राइट्स अ लेटर। तो इस प्रकार से आपको इसका बनाना है। जैसे मैं जानता हूँ कि कैसे किया जाता है, जैसे आई नो हाउ टू प्ले चेस, मैं चेस खेलना जानता हूँ, तो अब इस पर आपको 5 को वाक्य बनाना है। जैसे आपको बना के बोलना है, जैसे आपको बना के बोलना है, लिख के दिखाना नहीं है, इसको बोलना है। ठीक है, जब आप शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें इसका भी आपको जिक्र करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है, आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और बोलेंगे having been exposed a number of training programs such as customer service, selling skills and strategic planning, ये बोलकर, पूरा लाइन बोलकर आपको यही बोलना है, राम प्लेस क्रिकेट, माई फादर लव्स मी, माई मदर कुक्स द फूड। इस तरीके से आपको 5 इसका बनाना है। आई नो वाले का भी 5 बनाना है। और जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं समोसा खाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ईट समोसा, आई वॉन्ट टू गो टू पटना, आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू सी यू। इस तरह से इसका भी 5 बनाकर रिकॉर्डिंग करके डालना है। अगला है आई हैव टू, जैसे मुझे खाना है, ना है या ना पड़ता है।
जैसे मुझे पटना जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू पटना अलोन, मुझे अकेले पटना जाना पड़ता है। मुझे सिनेमा देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच द मूवी। मुझे एबी सर से बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू एबी सर। मुझे ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है, आई हैव टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास। और उसके बाद लास्ट वाला है डू डज़ नॉट हैव अदर वर्ड, जैसे आई डू नॉट हैव अ कार, शी डज़ नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव 100 रुपीज़, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई डू नॉट हैव एरोप्लेन। इस तरह से 5 इसका भी बनाना है, 5 इसका भी बनाना है। इस प्रकार से आपको ये इतने टास्क को करना है। तो टास्क याद रखिएगा, टास्क नंबर 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। इतना काम करके आप मुझसे मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस पे जोड़ देना, इसको 5 बार बोल कर रिकॉर्ड करना है। आप एक ही बार रिकॉर्ड कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि 5 बार बोले रिकॉर्ड करें, आप एक ही बार रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। लेकिन एक रिकॉर्डिंग में क्या क्या होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, और कहाँ गया, डू डज से क्वेश्चन बनाकर आपको डू डज से 10 क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर निगेटिव और अफर्मेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में भेजना है। ठीक है, 3 टास्क वहाँ हो गया और एक टास्क आपको मैंने यहाँ दिया है। इससे भी 5 सेंटेंस बनाकर आपको रिकॉर्ड करके भेजना है। रिकॉर्ड इसलिए करना है क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तो मुझे भी आपकी रिकॉर्डिंग ही चाहिए। कारण क्या है कि मैं सामने तो हूँ नहीं, अगर सामने होता तो मैं बुलवा लेता आप लोगों से, स्टेज पर बुलाकर लाइट वाइट पे जो भी है। लेकिन कहने का मतलब है कि अब ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन में आपको सबको वीडियो देना होगा। और याद रखें, इसको मिलने, ये वीडियो आप जब ख़त्म करेंगे उसके बाद काम में लग जाइएगा, क्योंकि कल इस वक्त से पहले तक मुझे हर व्यक्ति, जो बच्चे ने एडमिशन लिया है, उनका वीडियोस आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं भाई, दिस इज़ गोइंग टू बी beneficial, this is going to be benefit us, if this is going to be benefit us, we will be continuing, otherwise I will rather stop that and I will wait for the time once the class will be open, I will be teaching that time only. तो मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसको करो। नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा और किसी भी प्रकार से आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, अरे इंग्लिश कोई हुआ थोड़ी ना है यार, कुछ नहीं है, यू कैन डू दैट, मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, तुम्हारे अंदर एक ताकत सी आएगी। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको पता है कि अभी सर क्या पढ़ाते हैं, ठूस ठूस के देते हैं, तो तुम कहीं से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस तुम करने वाले तो बनो, अपना टास्क हैंडल करो, जो मैं बोल रहा हूं करके दिखाओ। देखो आने वाला समय तुम्हारा है, कल तुम्हारे अंदर इतना इंप्रूवमेंट होगा कि तुम अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, याद रखना मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, जितना टास्क है वो कंप्लीट करके मिलेंगे।